This system we have seen that in Fiji, the citizen of Fijian, they had special term and conditions. They thought that their vote's value is better, that is more, influencing. Okay? So in a democracy, each adult citizen must have one vote. This is feature. Okay? Right? Which feature is first or second? This is third feature. Again, first feature you had already studied. What was that first feature? That decision making, power of decision making should rest in the hand of, first feature क्या था? Power of decision making, right? This is class 9B, right? Social science. This is political science. And which chapter? What is democracy? Right. And why democracy? Why democracy? Right? And the topic. What is your topic? We are discussing features of democracy. Right? This is today's topic. Features of democracy. Right? In this features, the very first feature of democracy is that power of decision making, right, should rest, okay, in the hand of पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, जो कि पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पीपल. है क्या नहीं? पीपल से जो ये हमारे पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के आए हैं, उनके हाथ में जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो होना चाहिए. है कि नहीं? And then second feature of democracy came that election, democracy must be based on fair and free election. है कि नहीं? This was second feature. Democracy must be based, है ना, on, ठीक है, democracy must be based on fresh and fair election. Clear? Election should be fresh and fair. And the third one is, in a democracy, each adult citizen must have one vote. Okay? Each adult citizen must have one vote. and क्या है, the value of, ठीक है, and each vote must have one value. ठीक है, and each vote must have one value. Again, they must have one value. Clear? This is third feature, right? Till here we have discussed, and today we will discuss the fourth feature, that is rule of law and respect for rights. ठीक है? तो in this topic, rule of law and respect of rights, here you are watching a cartoon. ठीक है? यहाँ कार्टून क्या है? This cartoon is about Iraq election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. ठीक है, वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, दिस इलेक्शन वाज हेल्ड इन इराक. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वन मैन वन वोट स्लोगन वाज वेरी पॉपुलर. ठीक है, इन दिस इराक इलेक्शन देयर वाज वन वोट वन मैन इलेक्शन. ठीक है, ये बता रहा है इनका मेन चीज. ही इज शोन बिहाइंड बार्स. यहाँ सद्दाम हुसैन देखो बार्स में, सलाखों के पीछे. ठीक है,
क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट के फ्रॉम अमेरिका उसने इनको क्या किया, सलाखों के पीछे भेज दिया। देखो यहाँ पे सोच रहा है पीछे बैठ के सद्दाम हुसैन, ठीक है, क्या सोच रहा है, ही इज थिंकिंग आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट, ठीक है, ये उसकी थिंकिंग है सद्दाम हुसैन की। क्लियर? तो ये सारे कार्टून से हम लोग को क्या क्लियर होता है कि द स्लोगन ऑफ वन मैन वन वोट, ठीक है, दैट बिकेम पॉपुलर इन इराक। उस समय ये कार्टून आया था, ठीक है, नहीं तो उस समय मिलिट्री रूलर्स जो थे दे हैड एम्प्लॉयड वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड दे हैड कल्टिवेटेड मिलिट्री रूल, स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है, एंड इलेक्शन वाज वन ऑलवेज बाय मिलिट्री रूलर्स, है ना, बिकॉज वन पर्सन हैड 4 or 5 vote, its value was 1 vote of military ruler was equal to 5 vote of common people, ठीक है, in the regime of Saddam Hussein. But when he was behind the bars, this slogan became more popular, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी इन 1980। एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया था पेपर में, जिसने भी सेट बी अटेंड किया होगा वो ऑप्शनल क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था, ठीक है। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी 1 नंबर का क्वेश्चन था और ये 1980, इसका आंसर यही था, कुछ बच्चों ने लिखा था, ठीक है। सिंस दैट कंट्री हैज बीन रूल्ड इन बाय ZANU-PF, ठीक है, इन जिम्बाब्वे, ठीक है, इन जिम्बाब्वे there was rule of ZANU-PF, ठीक है, इस पार्टी का रूल था, ये जिम्बाब्वे। और इस तरीके से तो इस पार्टी ने जो है मतलब दिस पार्टी लेड दिस कंट्री ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे इंडिया में कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से ही थी, वैसी ZANU-PF ये एक पार्टी थी, ठीक है, और ये जो है उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब से पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी। एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर वाज रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, अंडरस्टैंड, लेड बाय रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे वाज द लीडर, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ठीक है, ऑफ दैट पार्टी। एंड प्रेसिडेंट मुगाबे, ठीक है, वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ही हैड यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, गलत हथकंडे लगाता था इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है, गलत तरीक़ों से इलेक्शन जीत लेता था। पॉपुलर तो पहले था ही, लेकिन सोचा कि इससे आगे मुझे आगे कोई ना हरा दे, इसलिए उसने अनफेयर प्रैक्टिसेस बिगिन कर दिया, है कि नहीं। और इससे क्या हुआ, प्रेसिडेंट मुगाबे ने क्या किया, इलेक्शंस में बहुत सारे अनफेयर वर्क किए। एंड ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। उसकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया कई बार, उसने स्पेशल लॉ बना दिए अपने लिए कि ताकि हमारी गवर्नमेंट हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, और इसलिए ऐसा किया ताकि वो लेस अकाउंटेबल रहे, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ही उसी हिसाब से बना दिया ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस दे करके उससे क्वेश्चन ना पुट अप करें और अपोजिशन की पावर भी लेस हो जाए, अंडरस्टैंड। तो क्या किया, है ना, रॉबर्ट मुगाबे, व्हाट ही डन, यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, फिर अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेनी टाइम्स to become less accountable,
ठीक है, लेस अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, मीन्स ही वांटेड टू रिड्यूस हिज अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही कम कर दी कि अब उससे उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, कोई भी गड़बड़ी हो, वो ये ना कहे कि रॉबर्ट मुगाबे की वजह से ऐसा हो, तो सीधे कह देगा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो गया है इसलिए मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, हर इशू में जो है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी हटा देता था, अपनी जवाबदेही खत्म कर देता था। ठीक है, इस तरीके से उसके रूल्स थे। ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। वो क्या करता था, पता लगा कि अभी अम्बेडकर नगर से एक अपोजिशन पार्टी लीडर खड़ा हो गया है। ठीक है, उसने तुरंत डीएम को फ़ोन किया कि उसको फंसा लो किसी केस में फंसा लो उसको, ठीक है, और जेल में डाल दो। राइट, अब वो बेचारा क्या करेगा, अब टॉर्चर फेस करना है उसको, तो सीधे हाथ जोड़ लेगा, कहेगा सर मैं नहीं खड़ा हूँगा आपके अपोजिट में, मैं अपना टिकट वापस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब वो बेचारा टिकट वापस ले लिया, छोड़ दिया गया, उसका आदमी जीत गया। राइट, तो ये क्या हुआ, अनफेयर प्रैक्टिसेस ही तो है कि नहीं। फिर इसी तरीके से जो है पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट बट डिक्लेयर्ड इलीगल। उसने कहा कि मेरी गवर्नमेंट में कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेगा, कहीं भी तोड़फाड़ हुई इट इज़ इलीगल, यू विल गेट हार्श पनिशमेंट। ठीक है, और मतलब जितने भी मीटिंग थी अपोजिशन पार्टी के लोग मीटिंग भी नहीं कर सकते थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, विरोध नहीं कर सकते थे, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहे, है कि नहीं। और इसके साथ साथ उसने क्या किया, देयर वाज लॉ दैट लिमिटेड राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट। एक कानून बनवा दिया कि अब प्रेसिडेंट की कोई भी क्रिटिसिज्म करेगा, कोई भी आलोचना करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, लॉ बन गया। ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया लॉ बना दिया। टीवी एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। टीवी एंड रेडियो पे वही समाचार आएगा जो गवर्नमेंट चाहेगा, दूसरा कुछ नहीं, कुछ भी उठपटांग आ गया। ठीक है, सारा जो है उसी के फेवर में आना चाहिए, सारा समाचार उसके अपोजिशन में नहीं आना चाहिए। राइट, और इसके साथ जो है क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी का पूरा वर्जन ही चेंज कर दिया। एंड देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। न्यूज़पेपर में कोई पत्रकार अगर उसके अपोजिट में छाप दिया तो उसको भी हरासमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस ही तो है कि नहीं। सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट ने जितने भी कोर्ट जजमेंट थे, ठीक है, उसको अपोज करना शुरू कर दिया। जितने भी कोर्ट के जजमेंट थे, जज ने किसी को जो है फांसी पे लटकाने का आदेश दे दिया, इसने कहा नो दिस इज अनफेयर। ठीक है, उसने कहा ये नहीं है, ही इज आवर कैंडिडेट। ठीक है, हिज क्राइम दैट इज एक्सक्यूज्ड। क्लियर। तो इन दिस मैनर उसका क्या था, 2017 तक, ठीक है, उसने लोगों को प्रेशराइज करके रखा। राइट, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, फ्रेश इलेक्शन भी हुआ, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, पॉपुलर लीडर के हाथ में है, इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, है कि नहीं। और उसके बाद जो है उसने सब पूरा रूल के हिसाब से काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसने अमेंडमेंट करके सब चीज़ लीगल बना दिया, बाकी सारी चीज़ें इलीगल डिक्लेयर कर दी। तो अब आप बताइए ये कहाँ तक डेमोक्रेटिक है, इतने फीचर होने के बाद भी, लेकिन यहाँ ये डेमोक्रेटिक नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारा रूलर हर 5 साल के बाद फिर से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर अप्रूवल, कॉमन पीपल शुड अप्रूव देम आफ्टर इलेक्शन, है कि नहीं। ऐसे नहीं कि वो 30 साल तक रूलर बना रहे, एक बार इलेक्शन हो गया फुर्सत जिंदगी भर के लिए, है ना, ये भी नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं। सो बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अंडर अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है ना, वो भी हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, पॉपुलर लीडर्स जो होते हैं ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब जानते हो, ऑटोक्रेटिक मीन्स दे बिकम लाइक रॉयल पीपल, अपने आप को राजा महाराजा समझने लगते हैं, दैट इज ऑटोक्रेटिक।
They think that we are the king, we are whole soul in charge of this area. इसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। एंड स्टार्टेड इम्पोजिंग डिक्टेटरशिप, तानाशाही करने लगे। हमारे इंडिया में अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन आ गया तुरंत पब्लिक चिल्लाने लगती है, तानाशाही नहीं चलेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने बैठ जाते हैं ना, तो यही हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे क्या है, इफ वी विश टू एसेस डेमोक्रेसी इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन शुड बी फ्रेश एंड फेयर, इट शुड बी लीगल, ठीक है। लीगल इलेक्शन होना चाहिए, बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए। कोई क्रिमिनल जो है रिकॉर्ड वाला आदमी हमारा लीडर ना बन जाए, है कि नहीं। करप्ट आदमी हमारा लीडर ना बन जाए, ये कॉमन पीपल की ड्यूटी है। जो वोट देने जा रहा है उसको देखना चाहिए, इंटरनेट पे चेक करते रहना चाहिए। हर आदमी की बायोग्राफी लिखी रहती है, उसको चेक करो, देखो क्या क्या उसमें लिखा है उसके बारे में, ठीक है। तब आपको सोचना है कि मुझे इसे वोट देना चाहिए कि नहीं। चाहे कोई कितना भी जो है आपको बहुत सारी लालच दे रहा हो, बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहा हो, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट देयर कैरेक्टर, है कि नहीं। तब हमें वोट करना चाहिए। सो दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड दे शुड बी फ्री टू थिंक। हमारे सिटीजन्स को सोचने का मौका देना चाहिए। भले ही बहुत पॉपुलर लीडर है, क्या इस समय भी सही है। पता लगा महेंद्र सिंह धोनी खूब हेलीकॉप्टर शॉट मारता था, है कि नहीं, लेकिन जब उसकी एज 40+ हो गई तो क्या गारंटी है कि फिर हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा। अब तो हमें नए यूथ को चांस देना पड़ेगा, है कि नहीं, कि जो ऐसा कर सके, तभी तो हम लोग जीतेंगे। नहीं तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला, वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, लेकिन हर समय थोड़ी ना फिट हैं। इसी तरह रॉबर्ट मुगाबे की क्या गारंटी थी कि वो जो है पहले शुरू में तो बहुत अच्छा लीडर था, उसने कंट्री को आज़ाद भी कराया, लेकिन बाद में उसने अनफेयर प्रैक्टिसेस बिगिन कर दी। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए तो गलत आदमी हो गया, उस समय की जनरेशन के लिए तो सही था, ठीक है, लेकिन अब जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए तो भाई वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है, उनके जो है इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है कि नहीं। उनको उनकी डेमोक्रेसी जो है वो अफेक्टेड हो रही है कि नहीं। तो हमें ऐसा कुछ डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि कितना भी पॉपुलर लीडर अगर वो ऑटोक्रेटिक हो गया है तो उसे हटाने के लिए हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, ठीक है। जब इलेक्शन होगा तो फिर से हम चाहे उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, है कि नहीं। अब हम उसको चाहे तो रिवार्ड दें या पनिशमेंट दे दें। पनिशमेंट का मतलब उसको नहीं चुनेंगे, दूसरा लीडर आएगा, दैट इज़ उसका पनिशमेंट हो गया, है कि नहीं। रिवार्ड में मतलब वो री इलेक्टेड हो गया, फिर से चुन लिया गया, है कि नहीं, तो उसको रिवार्ड मिल गया कॉमन पीपल की तरफ से, क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन से दैट एक हमारा फीचर क्या आया, तो ये फीचर क्या आया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स शुड रूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, ठीक है। ये आपका 4th फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिमिटेशंस है उसके अंडर में काम करना है गवर्नमेंट, इससे बढ़ के काम नहीं करना, ठीक है। उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को लोगों ने बहुत सोच विचार के बनाया है, वही हमारी डिमांड है, ठीक है। तो उसको पूरा करें, उसको बदले ना। उसको बदलने के लिए एक आदमी पॉपुलर लीडर अकेला नहीं बदल सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो भी है उसके लिए जो है दूसरा सिस्टम है, अगर उसको चेंज करना है तो हमारी कंट्री के जो लोकसभा राज्यसभा है प्लस जो भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है सबका अप्रूवल चाहिए, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, वो भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, इजंट इट। सो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी applied for that, and then your democratic principles can be set up, right? So in